کمانڈو شیر خان کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ پولیس کے قابو آ گیا ہے۔ ایک پولیس کانسٹیبل اس کے سامنے کھڑا تھا اور دو کانسٹیبل سنیما ہال کے گیٹ پر اندر کی جانب گیٹ کیپر کے پاس کھڑے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جو پولیس کانسٹیبل سامنے کھڑا تھا اس سے شیر خان نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوبصورت جوان عورت شیر خان کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور اس نے شیر خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ شیر خان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت جو سنیما ہال کی سیکنڈ کلاس میں اس سے 3 سیٹیں چھوڑ کر بیٹھی تھی اچانک اٹھ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر کیوں بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس نے شیر خان کا ہاتھ جلدی سے اپنے ہاتھ میں کیوں لے لیا تھا اور اسے یہ کیوں کہا تھا کہ چپ رہنا، کوئی بات نہ کرنا۔ پولیس کانسٹیبل نے عورت کو مخاطب کر کے کہا، گوبندی، ہمیں تو صبح ہی رپورٹ مل گئی تھی کہ تم پٹیالے سے امرتسر پہنچ گئی ہو، تم نے آتے ہی تھانے میں رپورٹ کیوں نہیں کی؟ اس عورت کا نام گوبندی تھا۔ گوبندی نے اس دوران اپنے پرس میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگا لیا تھا۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ کانسٹیبل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سگریٹ پیو گے؟ کانسٹیبل نے کہا، اس وقت میں سگریٹ نہیں پی سکتا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے تھانے میں اب تک اپنی امرتسر میں آمد کی رپورٹ کیوں نہیں کی؟ گوبندی نے جیسے کانسٹیبل کی بات سنی ہی نہیں تھی، اس نے پرس میں سے سگریٹ کا ایک بند پیکٹ نکال کر کانسٹیبل کی طرف بڑھایا اور کہا، اسے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر پینا، اس میں تمہارے لیے 500 روپے کا ایک نوٹ بھی ہے، یہ تمہارا تحفہ ہے جو میں پٹیالے سے لائی ہوں۔ پولیس کانسٹیبل نے چپکے سے سگریٹ کا پیکٹ لے لیا اور شیر خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارا پٹیالے کا کوئی یار ہے؟ گوبندی نے کہا، یہ میرا یار نہیں، میرا پتی ہے، اس کا نام مکھی شاہ ہے، میں نے پٹیالے میں شادی کر لی تھی۔ کانسٹیبل بولا، یہ بولتا کیوں نہیں؟ بس دیکھے جا رہا ہے۔ گوبندی نے کہا، یہ پٹیالے کی جیل میں 7 سال قید کاٹ کر آیا ہے، وہاں اسے اتنا مارا پیٹا گیا تھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی، مجھے اس سے پریم ہو گیا تھا، میں نے اس سے بیاہ رچا لیا، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں کل تھانے میں آ کر رپورٹ کر دوں گی۔ پولیس کانسٹیبل بولا، ضرور آ جانا، یہ میری نوکری کا معاملہ ہے۔ گوبندی نے سگریٹ کا کش لگا کر کہا، ہاں آ جاؤں گی، اب مجھے اپنے پتی کے ساتھ آرام سے فلم دیکھنے دو۔ پولیس کانسٹیبل مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ سنیما ہال میں بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ کے اندر ایک ایسا ڈرامہ ہو گیا تھا کہ جس پر شیر خان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ گوبندی نام کی اس عورت نے پولیس سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر شیر خان کو بھی بچا لیا تھا۔ جب پولیس کانسٹیبل چلا گیا تو شیر خان نے اس عورت سے کہا، کیا میں اب بول سکتا ہوں؟ وہ عورت جس کا نام گوبندی تھا اور جو ایک جرائم پیشہ عورت تھی، شیر خان کے اس سوال پر بے اختیار ہنس پڑی، کہنے لگی، ہاں اب تم بات کر سکتے ہو، لیکن اگر تم ابھی نہ ہی بولو تو اچھا ہے۔ پھر اس نے امرتسر پولیس کو گالی دی اور بولی، جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے ان کے قریب کوئی تماشائی نہیں تھا۔ گوبندی نے اسی طرح شیر خان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، کہنے لگی، تمہارے ہاتھ بڑے کھردرے ہیں، کیا تم خیرات کا کام کرتے ہو؟ شیر خان نے کہا، تم نے خوب پہچانا، میں خیرات کا کام ہی کرتا ہوں، آج کل بیکار ہوں، فیروز پور سے یہاں کام کی تلاش میں آیا تھا۔ اتنے میں ہال کی روشنیاں بجھ گئیں اور فلم شروع ہو گئی۔ گوبندی نے شیر خان کا ہاتھ ابھی تک اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، کہنے لگی، تمہارا نام کیا ہے؟ شیر خان نے 2-4 ہندوانہ نام ہر وقت اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، میرا نام کندن لال ہے، امرتسر میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں یہاں کام دلا دوں گا۔ یہاں آیا تو معلوم ہوا کہ میرا دوست چندی گڑھ چلا گیا ہے، اس وقت فیروز پور کوئی گاڑی نہیں جاتی، سوچا کچھ رات فلم دیکھ کر گزار لیتا ہوں، باقی رات اسٹیشن پر بیٹھ کر گزار دوں گا اور کل کسی گاڑی میں بیٹھ کر فیروز پور چلا جاؤں گا۔ گوبندی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ شیر خان کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے کر آہستہ آہستہ سہلا رہی تھی، کہنے لگی، مجھے مردوں کے سخت ہاتھ بڑے اچھے لگتے ہیں، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ شیر خان نے کہا، شادی ہوئی تھی مگر 2 سال بعد میری پتنی سورگباش ہو گئی۔ گوبندی نے کہا، کیا تم اپنی پتنی کو پیٹا کرتے تھے؟ شیر خان سمجھ گیا تھا کہ یہ جرائم پیشہ عورت کس ٹائپ کی ہے، اس نے کہا، ہاں کبھی کبھی اسے مارا پیٹا کرتا تھا۔ گوبندی نے کہا، عورتوں کو مارنے پیٹنے والے مرد مجھے بڑے پسند ہیں۔ شیر خان نے گوبندی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی، اسے امید پیدا ہو گئی تھی کہ اس عورت گوبندی کی مدد سے وہ کم از کم ایک رات کسی جگہ محفوظ ضرور گزار سکتا ہے۔ اس کے دل میں ایک سوال بار بار پیدا ہو رہا تھا، آخر اس نے گوبندی سے پوچھ لیا، تم نے پولیس کے سپاہی سے جو باتیں کہی ہیں وہ تم میرے بغیر بھی کہہ سکتی تھی، پھر تمہیں میرے پاس آ کر بیٹھنے، میرا ہاتھ تھامنے اور مجھے اپنا پتی ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گوبندی نے امرتسر کی پولیس کو گالی دے کر کہا، تم ان کتوں کو نہیں جانتے، اگر میں تمہیں اپنا پتی ظاہر نہ کرتی تو ان لوگوں نے مجھے پکڑ کر اپنے خفیہ اڈے پر لے جانا تھا اور ساری رات خراب کرنا تھا۔ مجھے نفرت ہے پولیس والوں سے، یہ تو اچھا ہوا کہ تم اکیلے بیٹھے تھے اور میں نے تمہیں اپنا پتی بتا دیا، میں نے تمہیں گونگا اس لیے ظاہر کیا تھا کہ تم پولیس کے آگے کوئی الٹی بات نہ کر دو۔ فلم کا انٹرول ہوا تو گوبندی نے چائے پیسٹری منگوا لی، کہنے لگی، شو ختم ہونے کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ شیر خان نے کہا، یہاں سے سیدھا اسٹیشن پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، صبح کسی گاڑی میں بیٹھ کر فیروز پور چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، میں نے تمہیں اپنا پتی ظاہر کیا ہے تو اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور رات میرے ساتھ گزارو، کل بے شک صبح چلے جانا۔ شیر خان نے سوچا کہ چلو رات بسر کرنے کا کوئی انتظام ہوا، صبح وہ منہ اندھیرے کسی طرف کو نکل جائے گا۔ فلم کا شو ختم ہوا تو گوبندی کمانڈو شیر خان کو اپنے مکان پر لے گئی۔ اس کا مکان دائم گنج کی آبادی میں آگے کی جانب ایک نالے کے قریب تنگ گلی میں تھا۔ مکان 2 منزلہ تھا، نیچے بیٹھک تھی جس میں آمنے سامنے 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ گوبندی کے بوڑھے نوکر رامو نے بیٹھک کی بتی روشن کر دی تھی۔ گوبندی نے شیر خان سے کہا، کندن جی تم اس پلنگ پر سو جاؤ، میں اس پلنگ پر سوؤں گی۔ اس مکان میں 2 ہی کمرے ہیں، ایک یہ کمرہ اور ایک کمرہ اوپر والی منزل میں ہے جہاں میرے بوڑھے ماتا پتا سوتے ہیں۔ ابھی موسم ایسا تھا کہ آدمی کمرے کے اندر سو سکتا تھا، مارچ کے آخری دن تھے۔ شیر خان پلنگ پر لیٹ گیا، کمرے میں گھٹیا شراب کی ہلکی
हल्की हल्की बू रची हुई थी। गोबंदी ने बिजली की रोशनी में शेर खान की मौजूदगी ही में अपनी रेशमी साड़ी उतार कर दूसरी सादा सी साड़ी पहनी और बिस्तर पर लेट गई। कहने लगी, तुम्हें बिजली की रोशनी तो जरूर तंग करेगी कुंदन जी, मगर मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। शेर खान ने सोना कहा था, बस रात का कुछ हिस्सा सोते जागते गुजार कर वहाँ से मुंह अंधेरे निकल जाना था। उसने कहा, नहीं, मुझे बिजली की रोशनी तंग नहीं करती, तुम मेरी फिक्र न करो। नौकर रामू दरवाजा बंद करके चला गया था। शेर खान बिस्तर पर लेटा बैठक का जायजा ले रहा था। छत के साथ एक पंखा लटक रहा था। दीवार पर भारत की फिल्म एक्ट्रेसों के 3-4 कैलेंडर लगे थे। एक जगह दीवार पर कृष्ण महाराज के शीशे में जड़ी हुई तस्वीर थी। शेर खान का ख्याल था कि गोबंदी अभी तक जाग रही होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके खराटों की आवाज आने लगी। उसके खराटों की आवाज बिल्कुल मर्दों जैसी थी। शेर खान को पलंग पर लेटे बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि बैठक का दरवाजा आहिस्ता से खोलकर मुलाजिम रामू अंदर दाखिल हुआ। कमांडो शेर खान ने आंखें बंद कर ली और ये जाहिर किया कि वो सो रहा है। ऐसा उसने किसी खास मसलहत के तहत नहीं किया था, बल्कि महज इसलिए किया था कि रामू किसी जरूरी काम से आया है। वो गोबंदी को जगाने वाला है और गोबंदी उठकर कहीं फिर शेर खान से बातें न शुरू कर दे। रामू ने गोबंदी के शाने हिलाते हुए कहा, भाई उठो, भूषण आया है। गोबंदी के खराटे एकदम रुक गए। उसने आंखें खोली और रामू से नींद भरी आवाज में बोली, क्या बात है? रामू ने कहा, भूषण आया है। गोबंदी ने नींद भरी आवाज में ही कहा, वो हरामी इस वक्त क्या लेने आया है? रामू ने एक नजर उस पलंग पर डाली जिस पर शेर खान लेटा हुआ था। शेर खान समझ गया कि रामू कोई ऐसी बात गोबंदी से करने वाला है जो वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा सुने। शेर खान ये बात जरूर सुनना चाहता था, इस ख्याल से कि कहीं भूषण उसे गिरफ्तार करने ही ना रहा हो। भूषण कोई CID का आदमी ही हो या पुलिस कांस्टेबल हो। शेर खान हल्के हल्के खराटे लेने लगा। रामू ने नींद के जेर असर गोबंदी को आहिस्ता से कहा, भूषण कोई पार्टी लेकर पाकिस्तान जाने वाला है। गोबंदी ने गाली देकर कहा, उस हरामी से कहो मुझे सुबह आकर मिले, इस वक्त मैं सो रही हूँ। मुलाजिम रामू खामोशी से बाहर चला गया। शेर खान पहले ही से जाग रहा था। ये सुनकर के कोई पार्टी पाकिस्तान जा रही है वो और ज्यादा बेदार हो गया। ये तो उसे मालूम हो गया था कि वो जराइम पेशा लोगों के अड्डे पर है। गोबंदी खुद भी जराइम पेशा है और उसका ताल्लुक भी जाहिर है जराइम पेशा अफराद से ही है, जिनमें जाहिर है स्मगलर भी होंगे, चोर चक्के भी होंगे, सजा याफ्ता भी होंगे और हो सकता है इनमें वो भारतीय दहशतगर्द भी हों जिन्हें भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्दी की खूनी वारदातें करने पाकिस्तान भेजा जाता है। कमांडो शेर खान अब हर हालत में ये मालूम करना चाहता था कि भूषण नाम का जो शख्स पार्टी लेकर पाकिस्तान जा रहा है वो वहाँ क्या करने जा रहा है। अगर ये रॉ के दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को अंधाधुंध गोलियों का निशाना बनाने जा रहे हैं तो फिर शेर खान भी उनके साथ जाएगा। शेर खान ने यह भी सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। चुनाचे सुबह वो गोबंदी के मकान पर ही रहा। वो मुंह हाथ धोने के बाद गोबंदी के साथ बैठा चाय पी रहा था कि सोचे हुए मंसूबे के तहत उसने बात शुरू कर दी। उसने गोबंदी से कहा, देवी जी, मैं सोचता हूँ कि फिरोजपुर जाकर क्या करूंगा, वहाँ से तो मैं काम की तलाश में अमृतसर आया था। गोबंदी ने शेर खान को सिगरेट का पैकेट देते हुए कहा, लो सिगरेट पियो, फिर बात करते हैं। शेर खान ने कहा, क्षमा करना, मैं सिगरेट नहीं पीता। गोबंदी ने अपना सिगरेट सुलगा कर कहा, तुम कुंदन के कुंदन ही रहोगे, सिगरेट भी नहीं पीते। शेर खान ने कहा, कभी पिया करता था, कभी शराब भी पिया करता था, लेकिन फिर सब कुछ छोड़ दिया। गोबंदी ने शेर खान का बाजू पकड़कर कहा, अरे कुंदन, तुम तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो तुम्हें बुद्धू समझ रही थी। दारू सिगरेट कब छोड़े और क्यों छोड़े? शेर खान ने कहा, क्या बताऊं, तुमने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया है, अब तो तुम्हारे घर का नमक खाया है, तुम्हारे आगे झूठ नहीं बोल सकता। बात यह है कि 4-5 बरस पहले दिल्ली में इसी तरह काम की तलाश में फिर रहा था। एक आदमी से मुलाकात हो गई, उसने मुझे एक और आदमी से मिला दिया। इन लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हें पाकिस्तान जाकर हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसके इवज हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। गोबंदी बड़े गौर से शेर खान की बातें सुन रही थी। उसने शेर खान की बात काटते हुए पूछा, वो क्या काम था? शेर खान बोला, क्या बताऊं, बड़ा उल्टा काम था। पाकिस्तान के शहरों में बमों के धमाके करने थे और लोगों के घरों में घुसकर उन्हें कत्ल करना था। गोबंदी ने पूछा, फिर तुम ऐसा करते थे? शेर खान कहने लगा, पैसे मिलते थे, ये काम करता रहा। 3 बरस तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहा और हर शहर में बमों के धमाके किए, कई लोगों को गोलियों का निशाना बनाया। गोबंदी ने पूछा, तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया? शेर खान ने कहा, बस भगवान ने जितनी देर तक मुझसे सेवा लेनी थी ले ली, मेरा जी भी भर गया। उसके बाद मैंने शराब, सिगरेट और आतंकवाद भी छोड़ दिया। गोबंदी ने कहा, तुम तो पाकिस्तान के शहरों से अच्छी तरह वाकिफ होगे। शेर खान ने कहा, वाकिफ होना तो दूसरी बात है, मैं तो पाकिस्तान के हर बड़े शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। मैं तो मुसलमान बनकर पाकिस्तान के एक शहर में चाय की दुकान भी चलाता रहा हूँ। गोबंदी ने पूछा, अब वो दुकान कौन चलाता है? क्या तुम्हारा राज तो नहीं खुल गया? शेर खान बोला, राज खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपने सलूक से वहाँ लोगों में एक बाइज्जत मकाम बनाया हुआ है। लोग मुझे हाजी साहब कहकर बुलाते हैं। वो लोग आज भी मुझे याद करते हैं। मैं चाय की दुकान अपने एक नौजवान मुलाजिम के हवाले करके आ गया था। मैंने मोहल्ले वालों को यही बताया था कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, वहाँ 2-3 साल इबादत करके खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। गोबंदी ने पूछा, तुम्हारा चाय का होटल पाकिस्तान के किस शहर में है? शेर खान ने सब कुछ पहले सोच रखा था। उसने कहा, लाहौर में। गोबंदी ने मुझसे वो सवाल किया जो मैं चाहता था कि वो मुझसे पूछे। उसने कहा, कुंदन लाल, तुम हमारे मतलब के आदमी हो। अगर हम तुम्हें 10,000 माहवार देंगे तो क्या तुम पाकिस्तान जाकर वही काम कर सकोगे जो तुम अपने एजेंट के कहने पर किया करते थे? शेर खान गोबंदी को जहाँ लाना चाहता था वो वहाँ आ गई थी, फिर भी उसने एकदम हामी भरने से गुरेज किया। उसने सर खुजाते हुए कहा, मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। पैसे तो इसमें बहुत हैं, लेकिन हर वक्त
पकड़े जाने का डर रहता है और आतंकवादी एक दफा पकड़ा जाए तो फिर उसकी अजियतनाक मौत यकीनी होती है। गोबंदी ने कहा, मगर ये भी देखो कि तुम पाकिस्तान में जाकर भारत माता की सेवा करोगे। शेर खान ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, भारत माता की सेवा की खातिर मैं ये काम करने को तैयार हूँ। गोबंदी कहने लगी, हमारी एक पार्टी पाकिस्तान जा रही है, उसका लीडर भूषण है। भूषण मेरा शागिर्द ही है। इस पार्टी में एक लड़की कमला भी है जो मुसलमान बनकर पाकिस्तान में काम करेगी। भूषण आज किसी वक्त मेरे पास आ रहा है, वो भी पाकिस्तान में कई जगहों पर बम के धमाके कर चुका है, मगर इस बार ये पार्टी एक खास मिशन पर पाकिस्तान जा रही है। शेर खान के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, ये खास मिशन क्या है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? गोबंदी ने कहा, तुम्हें जाने से पहले सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी तुम मेरे मकान में ही रहोगे और बाहर ना निकलना, क्योंकि तुम पार्टी के साथ पाकिस्तान में स्मगल किए जाओगे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें लोग यहाँ देखें। बाकी तुम इस मामले में खुद समझदार हो। शेर खान को एक बहुत बड़ी दहशतगर्द पार्टी को पाकिस्तान में गिरफ्तार करवाने और इस खतरनाक मिशन का खोज लगाने का बैठे बैठाए मौका मुयस्सर आ गया था, जिसके लिए ये लोग पाकिस्तान में स्मगल किए जा रहे थे। उसने कहा, मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं मकान के अंदर ही रहूंगा। सारा दिन कमांडो शेर खान भारतीय दहशतगर्द कुंदन लाल की हैसियत से जराइम पेशा गोबंदी के मकान बल्कि डेरे पर भारतीय दहशतगर्दों का इंतजार करता रहा। इनमें से कोई भी न आया। गोबंदी थोड़ी देर के लिए एक जरूरी काम से बाहर गई तो शेर खान को ताकीद करके गई कि वो नीचे बैठक में ही रहे। शाम के वक्त गोबंदी वापस आ गई, कहने लगी, भूषण अभी थोड़ी देर में आ रहा है, मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो ये सुनकर खुश हुआ कि उनकी पार्टी को एक ऐसा अपना आदमी मिल गया है जिसके पास पाकिस्तान में चाय के होटल की शक्ल में एक ठिकाना मौजूद है। शेर खान ने कहा, मैं इन लोगों की हर तरह से पाकिस्तान में रहनुमाई करूंगा, लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि हम किस मिशन पर पाकिस्तान जा रहे हैं। गोबंदी बोली, मैंने इस बारे में पार्टी के लीडर भूषण से मशवरा किया था। उसने कहा है कि चूंकि हमने अभी तक पार्टी के किसी आदमी को इस खास मिशन के बारे में नहीं बताया, इसलिए कुंदन लाल यानी तुम्हें भी अभी नहीं बताया जाएगा कि हमारा मिशन क्या है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं? गोबंदी ने कहा, ये तुम्हें पाकिस्तान पहुंचने के बाद मौका आने पर पार्टी लीडर भूषण सब कुछ बता देगा। बेहतर है कि अभी तुम इस बारे में कोई सवाल न करो। शेर खान खामोश हो गया। उसे मालूम था कि इन दहशतगर्दों के और खास तौर पर भारत की पाकिस्तान दुश्मन खुफिया एजेंसी रॉ के दहशतगर्दों के बाज बड़े सख्त उसूल होते हैं और वो उनकी खिलाफ वर्जी कभी बर्दाश्त नहीं करते। रात के 10 बज रहे थे। गोबंदी ऊपर वाले कमरे में अपने माता पिता के पास थी कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। शेर खान नीचे बैठक में बैठा था। बैठक का दरवाजा उसने गोबंदी के कहने पर अंदर से बंद किया हुआ था। उसने दरवाजे के साथ कान लगा लिए, ये देखने के लिए कि बाहर से कौन आया है। दूसरी बार दस्तक हुई तो बूढ़े मुलाजिम रामू ने ड्यूटी का दरवाजा खोल दिया। ड्यूटी में पार्टी लीडर भूषण की आवाज आ रही थी, बाई जी कहाँ है? मुलाजिम रामू ने कहा, ऊपर है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। भूषण ऊपर चला गया। थोड़ी देर के बाद गोबंदी पार्टी लीडर भूषण को साथ लेकर नीचे बैठक में आ गई। उसने शेर खान से भूषण का तारुफ करवाया और कहा, भूषण ये कुंदन लाल है। भूषण 30-35 साल का एक सेहतमंद नौजवान था। चेहरे पर बाएं जानिब जख्म का लंबा निशान था। शक्ल ही से जराइम पेशा लगता था। रंग सांवला था। पतलून कमीज पहन रखी थी। सिगरेट पी रहा था। भूषण ने शेर खान पर एक गहरी निगाह डाली और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही है। गोबंदी ने शेर खान से कहा, कुंदन ये पार्टी लीडर भूषण है, तुम लोग इसके साथ पाकिस्तान जाओगे और इसके हर हुक्म की पाबंदी करोगे। शेर खान बोला, मैं जानता हूँ, हमें अपने पार्टी लीडर के हुक्म के मुताबिक चलना पड़ता है। भूषण ने सोफे पर बैठे हुए शेर खान से पूछा, लाहौर में तुम्हारी किस जगह पर चाय की दुकान है? शेर खान ने उससे जगह का नाम बताया और कहा, मैं 4.5 साल से वहाँ एक मुसलमान की हैसियत से चाय का छोटा सा होटल चला रहा हूँ। पिछले 1 साल से भारत वापस आ गया हूँ, लेकिन होटल अपने एक पाकिस्तानी मुलाजिम को दे आया था। मैंने उसे यही कहा था और मोहल्ले वालों को भी यही बताया था कि मेरा दिल दुनिया से भर गया है। अब चाहता हूँ कि सऊदी अरब जाकर कुछ अरसा इबादत करके अपने गुनाहों की माफी मांगूं। बस ये बहाना करके मैं बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ गया। मेरा इरादा वापस जाने का नहीं था। मैंने रॉ के अपने एजेंट को कह दिया था कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, लेकिन गोबंदी जी ने जब बताया कि इस वक्त भारत माता को मेरी जरूरत है तो मैं आप लोगों के साथ जाने पर तैयार हो गया हूँ। भूषण कहने लगा, लाहौर में तुम्हारा घर किस जगह पर है और क्या वो महफूज है? शेर खान के पास तो लाहौर में अपना कोई घर नहीं था और ना ही चाय की कोई दुकान थी। वो इन लोगों को उस तरफ ले जाना ही नहीं चाहता था, मगर इन लोगों को कोई दूसरा ठिकाना बताना भी जरूरी था जहां वो उन्हें खुफिया तौर पर रख सके और उनके खुफिया मिशन के बारे में मालूमात हासिल करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इत्तला दे सके और पाकिस्तान की हुकूमत को खबरदार कर दे। पाकिस्तान में सिर्फ उसका चीफ कमांडो कर्नल ही था जिससे उसने कमांडो ट्रेनिंग हासिल की थी और जिसकी रहनुमाई में वो कश्मीर के जिहाद में शरीक हुआ था। दिल्ली में बैठकर वो अपने चीफ कर्नल से राब्ता पैदा नहीं कर सकता था। ये काम वो पाकिस्तान पहुंचकर ही कर सकता था। उसने भूषण से कहा, भूषण जी मेरे पास एक अपना तो मकान है जो मेरे लाहौर वाले चाय के होटल के ऊपर ही एक कमरे की शक्ल में है, लेकिन उस जगह हमारी पार्टी का रहना खतरनाक साबित होगा। मैं तो वहाँ चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मैं वहाँ आने का मशवरा नहीं दूंगा। दहशतगर्दों के लीडर भूषण ने कहा, ये सब कुछ मैं समझता हूँ। तुम आखिर 4-5 साल से लाहौर में इंडिया की तरफ से हाजी साहब के नाम से दहशतगर्दी की ड्यूटी कर रहे हो। तुम्हें कोई ऐसी जगह जरूर मालूम होगी जहाँ हमारी पार्टी कुछ दिनों के लिए छुप कर अपने मिशन के लिए इब्तदाई तैयारियां कर सके। शेर खान ने कहा, इसका बंदोबस्त लाहौर जाकर हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं कोई खुफिया और महफूज जगह तलाश नहीं कर लेता
तुम लोगों को पार्टी के साथ किसी होटल में ही रहना होगा। भूषण बोला, होटल हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा, हम किसी जगह रह लेंगे, लेकिन क्या 2-1 दिनों के अंदर अंदर तुम कोई खुफिया जगह तलाश कर सकोगे? क्योंकि हमारी पार्टी ने लाहौर में भी क़याम नहीं किया। जब हम दहशतगर्दी के मिशन पर पाकिस्तान गए हैं तो लाहौर में कुछ वक्त के लिए जरूर ठहरे हैं, लेकिन वहाँ रहे कभी नहीं। हमने दहशतगर्दी की ज्यादा वारदातें सिंध के शहरों में की हैं या कराची में की हैं, लेकिन इस दफा हमें भारत की एजेंसी रॉ की तरफ से जो मिशन सौंपा गया है उसके लिए बाद जरूरी बातों का इल्म हासिल करने के लिए हमारा लाहौर में कुछ रोज ठहरना जरूरी हो गया है। शेर खान ने कहा, मैं तकरीबन 5 बरस से पाकिस्तान के शहर लाहौर में हाजी अब्दुल्लाह के नाम से छोटा सा चाय का होटल चला रहा हूँ। मैंने इलाके में अपना बड़ा असर रसूख बनाया है, मेरा वहाँ लोगों में भी बड़ा असर रसूख है। मैं आप लोगों की रिहाइश के लिए कोई ना कोई जगह जरूर तलाश करूंगा। गोबंदी ने भूषण से मुखातिब होकर कहा, भूषण कुंदन बड़ा काम का आदमी है, हमें पाकिस्तान में एक ऐसे ही अपने किसी आदमी की तलाश थी, ये अच्छा हुआ कि हमें कुंदन लाल मिल गया। तुम ये बताओ कि कमला, कालिया और गोपी कहाँ है? मालूम हुआ कि भूषण पार्टी में भूषण के अलावा एक औरत कमला और 2 आदमी कालिया और गोपी शामिल थे। भूषण ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, इन लोगों को बॉर्डर के एक गांव में खुफिया जगह पर पहुंचा दिया गया है। गोबंदी ने पूछा, मैंने तुम्हें 70,000 रुपए की जो रकम जरूरी खर्चे के लिए पाकिस्तानी करेंसी की शक्ल में दी थी वो तुमने कहाँ रखी है? भूषण बोला, वो मेरे पास यहाँ मेरे अमृतसर वाले मकान में ही है, जाती दफा उसे साथ लेता जाऊंगा। गोबंदी ने पूछा, तुम लोगों ने मुसलमानों वाले हुलिये में बॉर्डर क्रॉस करना है, इसका भी इंतजाम हो गया है कि नहीं? भूषण कहने लगा, मैं तो पतलून कमीज में ही रहूंगा, कालिया और गोपी शलवार कमीज में होंगे जो पाकिस्तान में आम पहनी जाती है, और कमला भी शलवार कमीज में होगी। इसके वास्ते स्याह रंग का एक बुर्का साथ रख लिया है जो वो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते ही पहन लेगी। कमांडो शेर खान उनके पास कुंदन लाल दहशतगर्द के रूप में बैठा उन लोगों की बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था कि ये लोग कितना जबरदस्त और मुकम्मल बंदोबस्त करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने जा रहे हैं। वो सोच रहा था कि अगर इत्तेफाक से सिनेमा हाउस में उसे गोबंदी न मिलती और वो उसके साथ उसके मकान पर न आ जाता तो रॉ के एजेंटों की ये दहशतगर्द पार्टी पाकिस्तान के शहरों में न जाने कैसी कैसी तबाही मचाती। गोबंदी ने भूषण से कहा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने तुम्हारे बॉर्डर क्रॉस कराने का किस रात को इंतजाम किया है? भूषण नया सिगरेट सुलगाकर बोला, ये कल हमें मालूम हो जाएगा। गोबंदी कहने लगी, पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाने के आदमियों को तुम्हारे बारे में इत्तला दी जा चुकी है। तुम जानते हो कि तुम्हें इस्लामाबाद जाकर किससे मिलना है, वो लोग तुम्हें तुम्हारे मिशन के बारे में सही तफसीलात बता देंगे। भूषण ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, लाहौर में कुंदन लाल ने जैसे ही हमारी खुफिया रिहाइश का इंतजाम किया, मैं फौरन अपने सिफारत खाने से राब्ता पैदा करने इस्लामाबाद रवाना हो जाऊंगा। गोबंदी ने कहा, और याद रखना कमला तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाएगी। भूषण ने कहा, मुझे सब कुछ याद है, तुम फिक्र न करो। फिर सोफे से उठा और बोला, अब मैं जाता हूँ, कुंदन लाल इस दौरान तुम्हारे पास ही रहेगा। कल शाम को मैं आऊंगा और बता दूंगा कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आदमी हमें किस वक्त बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं। अब मैं जाता हूँ। भूषण ने गोबंदी को नमस्कार किया, शेर खान से हाथ मिलाकर उसे भी नमस्कार किया और चला गया। उसके जाने के बाद गोबंदी ने शेर खान से कहा, तुम भी कुछ देर आराम कर लो, मैं भी आराम करती हूँ। ये कहकर वो चली गई। शेर खान बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि उसे लाहौर पहुंचते ही फौरन अपने बॉस कर्नल कमांडो से राब्ता पैदा करना होगा ताकि उसे सारे हालात से आगाह करे। वो सारा दिन शेर खान ने गोबंदी के मकान पर ही गुजार दिया। शाम गहरी हो रही थी कि दहशतगर्द भूषण आ गया। गोबंदी और शेर खान उसका इंतजार ही कर रहे थे। गोबंदी ने पूछा, बॉर्डर क्रॉस करने का इंतजाम हो गया? भूषण ने कहा, हम रात के 1 बजे बॉर्डर क्रॉस करेंगे, कुंदन को अभी मेरे साथ चलना होगा। शेर खान पहले ही से तैयार बैठा था। गोबंदी कहने लगी, इंडिया का बॉर्डर तो तुम्हें इंडियन सिक्योरिटी फोर्स वाले क्रॉस करवा देंगे, आगे पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करने का क्या बंदोबस्त करोगे? भूषण बोला, पाकिस्तान का बॉर्डर हमें एक स्मगलर क्रॉस करवाएगा, उससे बात हो चुकी है। अगर इसमें मारे जाने का खतरा है, लेकिन ये खतरा हमें मोल लेना ही पड़ेगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, गोबंदी ने कहा। उसके बाद शेर खान भूषण के साथ रवाना हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।